Yes, students, we have finished our unit 1 about reproduction. I hope you don't have any doubt. अगर होता तो आप मुझसे जरूर पूछते. So now we have to start with a very important unit that is about genetics. So what is genetics and what are the different process we have to read about the genetics. But the key point before we have to start genetics is reproduction again. If you know the mechanism of reproduction, then this genetics is very easy. Otherwise you can't understand the genetics without the basic principle or basic mechanism of reproduction. So one thing here is reproduction and other thing here is meiosis. These are the two factors which are on which the complete genetics is we can say based. So reproduction. So first come to basic about the reproduction again. We have seen that in reproduction, I'm just starting from the microspore mother cell over here. We have seen that there is microspore mother cell and megaspore mother cell, and we have seen that both were 2N. Okay, suppose we are talking about the human beings, तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर थी, वो क्या हो गया स्पर्म मदर सेल और ये एग मदर सेल. तो 2N मीन्स देयर आर 46 chromosomes or 23 pairs both side. Okay, now we know that there is meiosis, and with meiosis there is formation of 4 haploid sperm and formation of single egg. तो ये hamaरे पास क्या हुए N. Then at the time of fertilization, now give them number 1, number 2, number 3, number 4. Now see what are the different possibilities. Okay, now this sperm could go with this egg, this sperm could go with this could go with this, or this could go with this. So that means there are different possibilities, but one thing is common, that means n number of chromosomes are here and n number of chromosomes are here. तो n plus n ये वापस मिलके बना देगा 2n, or we can say diploid. So that means the number of chromosome present in the parents here same the number of chromosome in progeny, or we can say offspring. तो ड्यू टू मियोसिस क्या हुआ, एक तो गैमेट्स में जो क्रोमोसोम थे वो हाफ हुए और जिसकी वजह से वो रिस्टोर हुए. तो दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन क्या करता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ये क्या करता है, रिस्टोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और वी कैन से मेंटेन देम. बात आई यहां तक समझ में. नाउ सेकंड फैक्टर इज meiosis. We know that meiosis introduce variation, and variation is helpful for evolution and survival. तो इट मीन्स हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी वेरिएशन की. एक वेरिएशन कहाँ से आ सकती है, मियोसिस से. सेकंड वेरिएशन कहाँ से आ सकती है कि दिस गैमेट कुड गो विद दिस और दिस और दिस. एक वेरिएशन कहाँ से आ सकती है, यहाँ से. एंड थर्ड इज वी हैव डिफरेंट पेरेंट्स. तो दैट मीन्स द ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी आर नॉट एग्जैक्टली वी कैन से मॉर्फोलॉजिकली विद देयर पेरेंट्स. उन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ नया और कुछ अलग आएगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन. अब इसी पूरे के पूरे मैकेनिज्म पर बेस्ड है जेनेटिक्स. ओके, तो थोड़ा सा फिर देखो, 2n मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड गैमेट्स बने, वापस मिले, एंड अगेन दे रिस्टोर द क्रोमोसोम नंबर. एक और नई चीज है, दैट इज वेरिएशन. वेरिएशन मीन द मॉर्फोलॉजिकली द प्रोजेनी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स समहाउ और सम डिग्री. ओके, तो वो वेरिएशन भी आई और ये मियोसिस में सेपरेट हुए. So this is all about, we can say this is the basic of genetics. Now come to
3-4 general terms. Once again you have to revise this meiosis. This is your homework. Now very first term is genetics. Genetics mean branch of biology which deals with study of inheritance and वेरिएशंस. दैट मीन जो क्या स्टडी करे, इनहेरिटेंस को और वेरिएशन को. अब हमें ब्रांच भी पता है, बायोलॉजी भी पता है, डील भी पता है, स्टडी भी पता है. तो व्हाट इज दिस इनहेरिटेंस और व्हाट इज दिस वेरिएशन. नाउ कम टू दिस टर्म इनहेरिटेंस. कहीं आपने सुना होगा ना कि ये तो इसमें इनहेरिटेड है, लंबे बाल है, घुंघराले बाल हैं, या आंखें ऐसी है, या इसकी हाइट ऐसी है, ठीक है, या ये फैट है, कहते हैं ना हमारी फैमिली में है, या हमारी इनहेरिटेंस ऐसा है, हमारी फैमिली में पेडिग्री में ऐसे चल रहा है. इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस मीन द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर of characters from one generation to next. दैट मीन कौन सा जो प्रोसेस है, जैसे क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, कैरेक्टर्स का, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. दैट इज नॉन एज इनहेरिटेंस. जैसे इफ देयर इज ए ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल, तो उनका जो बच्चा है, जो किड है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो क्या होगी, ह्यूमन बेबी ही होगा. इफ यू टॉक अबाउट हियर एलिफेंट की बात करें तो वो किसका होगा, एलिफेंट का ही होगा. इफ यू टॉक अबाउट काउ एंड बुल तो वो इन्हीं का होगा. दैट मीन्स ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस एलिफेंट. That means as such the characters having in male and female body or human body, as such they transfer to their next generation. Okay, तो ये कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस क्या है, that is known as a inheritance. अब कोई पूछ ले कि होता कैसे है भी, तो we have to give only one answer or we can say one word answer. We can say, कोई पूछे कैसे है तो आप कहोगे by means of gametes. That means each and every character they are present in gametes. तो gametes में ऐसा क्या है, तो जो gametes हैं that means they are the only cell. Inside cell there is nucleus, inside nucleus there is chromosome, और chromosome में हमारा क्या है, DNA है, और DNA पे क्या है, हमारे genes हैं, and genes control each and every activities of the cell or of the body. Okay, तो by means of gametes ट्रांसफर होता है. अगर gametes वाला बीच में से फेज निकाल दिया जाए रिप्रोडक्शन का, तो there is no formation of zygote and no formation of new generation. तो inheritance means the process by which transfer of characters from one generation to next generation. तो फिर ये characters क्या हैं, characters मान लिया कोई भी any attribute of my body or any body that are characters like my ear, my eyes, hair, hands, legs, fingers, heart, kidney, whatever the characters or the we can say attributes present in a body are the characters. Okay, now next is a variation. वेरिएशन में जैसे हम बात करें मेन्यू की इन द फूड और लंच डिनर, तो क्या वेराइटी है, वेरिएशन क्या है कि ये इस तरह का खाना है, ये साउथ इंडियन है, ये वेज है, नॉन वेज है, बटर. तो दीज आर द वेरिएशन इन फूड ओनली. तो हियर वेरिएशन मीन द वी कैन से द डिग्री ऑफ डिफरेंस इन progeny with their parents.
पेरेंट्स, यानी कि जो प्रोजनी है वो अपने पेरेंट्स से कितना डिफरेंट है किसी भी कैरेक्टर में, दैट इज नोन एज वेरिएशन. दिस वेरिएशन इज a very broad term. Variation we can see in population, variation we can see in community, variation we can see in a ecosystem. So here we are talking only about the genetics and inheritance. तो inheritance हम parents की और progeny की ही बात कर रहे हैं. That's why I have used the word the difference in progeny with their पेरेंट्स. अदरवाइज इन पॉपुलेशन डिफरेंस है. एक पॉपुलेशन लो, जैसे हमारे स्कूल की एक क्लास के स्टूडेंट की पॉपुलेशन लेते हैं तो वहां पर वेरिएशन किस में है, स्टूडेंट्स की हाइट में, वेट में, बॉडी कलर में. ओके, देयर आर मेनी डिफरेंसेस और वेरिएशन, बट दे ऑल आर वी कैन सी ह्यूमन बीइंग, बट देयर इज ए डिग्री ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट कैरेक्टर. बट हियर स्पेसिफिकली वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोजनी एंड देयर पेरेंट्स. तो उनमें क्या डिफरेंस है, दैट इज वेरिएशन. तो फिर वेरिएशन आई कहां से, तो दैट मीन्स इन अर्लियर इन दिस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट द वेरी फर्स्ट इज दैट इज वी कैन से डिफरेंट पेरेंट्स हैं. तो दैट मीन्स मदर में अलग कैरेक्टर थे, फीमेल फादर में थोड़े से अलग कैरेक्टर थे, सेम ही. तो एक वन आया. सेकंड कहां से आया, मियोसिस हुई. वी नो दैट इन मियोसिस देयर इज ए क्रॉसिंग ओवर. और थर्ड की अगर बात करें तो दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वी कैन से फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. अब क्रॉसिंग ओवर हुई है, दैट मीन्स देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म, और किसी में क्रॉसिंग ओवर कहीं हुई है, किसी में क्रॉसिंग ओवर कहीं हुई है. दैट मीन्स मिलियंस ऑफ स्पर्म है तो उसमें मिलियंस ऑफ डिफरेंट क्रॉसिंग ओवर हुई है. तो उनमें वहां पर क्या डिफरेंट वैरायटी है और हर एक के पास अलग अलग वैरायटी है. देन दिस डिपेंड अपॉन के विच स्पर्म विल गेट फ्यूज विद द ओवम. तो उनमें जो वेरिएशन है वो एक रैंडम प्रोसेस है. तो वी कैन सी हियर द इंडिपेंडेंट फ्यूजन और रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. क्लियर है. तो इसके बाद में कुछ और भी म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे हम. तो 3 डिफरेंट पेरेंट्स आर देयर, मियोसिस इज देयर, और वी कैन सी रैंडम फ्यूजन और इंडिपेंडेंट फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स. तो दिस इज अबाउट द इनहेरिटेंस, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ दिस जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस और वेरिएशन. किसने काम किया, कैसे क्या काम किया और क्या रिजल्ट आया, दैट वी हैव टू स्टडी नाउ. Okay, now a scientist known as father of genetics, a scientist by the name Mendel is known as father of genetics. He was a mathematician. वो कोई बायोलॉजिस्ट नहीं था, वो मैथमेटिशियन था. उसने अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ये जो सारे रिजल्ट थे वो ऑब्जर्व किए थे. ही हैज वर्क कब किया था, 1856 टू 1863. ओके, इन सालों में उसने काम किया था और उसने प्लांट लिया था पी का. अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा फन ट्रिक बनता है, दैट इज नंबर 7. कुछ समझाने के लिए बता रहा हूं. जैसे द नंबर ऑफ MS धोनीज सेट इज 7. T20 वर्ल्ड कप कब जीता था, 2007 में. हियर 7, हियर 7. इफ यू टॉक अबाउट द सेट ऑफ रोनाल्डो, आई थिंक उसका भी नंबर क्या है, 7 है. मेसी का 10 है. ओके, तो 7 7 7. अब देखो 1856 टू 1863, ये भी कितने साल में, 7 years में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. नाउ सेकंड, ही टुक द पी, एंड पी इज ए मेंबर ऑफ लेग्यूमिनेसी. वी हैव स्टडीड इन क्लास 11 इन मॉर्फोलॉजी. तो लेग्यूमिनेसी मेंबर का है, द नेम इज पाइजम सेटिवम. ओके, अब देखो सेकंड 7 क्या है, ही वर्कड फॉर 7 ईयर. और पाइजम सेटिवम में
जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट मीन हैप्लॉइड क्रोमोसोम है दे आर 7, तो दैट मीन 7 इज इक्वल टू n, तो 2n कितना हो जाएगा 14। तो आप n याद रखोगे इसको रिलेट करने के लिए। सो 7n दैट मीन्स हैप्लॉइड नंबर 7 है। जैसे हमारा हैप्लॉइड नंबर है 23, डिप्लॉइड है 46, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, 7 साल तक उसने काम किया। नाउ ही टुक 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो उसने कितने साल काम किया 7 साल। क्रोमोसोम नंबर कितना है n दैट इज 7, कितने कैरेक्टर लिए 7। तो अब वर्ड आए यहां पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ओके। एंड वन मोर वर्ड हियर इज ट्रेड्स, ठीक है। अब देखो फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मीन वी कैन से एनी morphological feature या features of a body, that means any morphological feature or character of a body is known as character। जैसे मैं मेरे कैरेक्टर्स की बात करूं तो जैसे कैरेक्टर है हाइट, कैरेक्टर है वेट, कैरेक्टर है हेयर का कलर, कैरेक्टर है आई कलर, ओके। कैरेक्टर्स मीन, इसको ध्यान से समझना है, कैरेक्टर्स मीन एनी मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ बॉडी, जैसे हाइट होगी, वेट हो गया, हेयर हो गया, कलर हो गया। नाउ अनदर वर्ड इज नोन एज ट्रेड और ट्रेड्स। तो ट्रेड्स मीन क्या है, alternating form of a character, alternating form of a character, or other word we can use contrasting, other word we use can contrasting। जैसे मैं वर्ड लूं हाइट, तो हाइट की कौन से अल्टरनेटिंग फॉर्म हो सकती है, जैसे हाइट कुड बी टॉल और हाइट कुड बी ड्वार्फ, जैसे स्मॉल। अगर मैं आई का कलर लूं तो इसकी अल्टरनेटिंग फॉर्म और कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म क्या हो सकती है, दैट मीन आई का कलर ब्लू हो सकता है, इट कुड बी ब्राउन हो सकता है। बात समझ में आई है। वापिस देखो, कैरेक्टर्स मीन एनी मॉर्फोलॉजिकल फीचर है किसी बॉडी का, दैट इज कैरेक्टर। जैसे हाइट है, वेट है, हेयर का कलर है, आई का कलर है, कोई भी कैरेक्टर है। ट्रेड क्या है कि उसकी अल्टरनेटिंग और कंट्रास्टिंग फॉर्म कौन सी है। तो जैसे हाइट को नहीं तो हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है। अगर आई की कलर की बात करें तो ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। अगर हम हेयर के कलर की बात करें तो किसी में वाइट है या रेड है या पेल कलर का है या ब्लैक है, वो भी हो सकता है। अगर हम बाल की शेप की बात करें, हेयर की शेप की, तो ब्लॉन्ड हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है। तो डिफरेंट फॉर्म कुड बी देयर और कंट्रास्टिंग फॉर्म कुड बी देयर। तो ये हो गए कैरेक्टर्स और ये हो गए ट्रेड्स, ओके। तो ही टुक 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन 7 ट्रेड्स लिए उसने। बात समझ में आई या नहीं है। तो यहाँ पर ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स देखने हैं, कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे अभी इसके बाद में। नाउ व्हाई ही चोज पी प्लांट ओनली। अब देखो पहला क्या है, देयर इज ए शॉर्ट लाइफ साइकिल है, दैट मीन्स वी कैन से अप्रोक्सीमेट 3 to 4 months है। सेकंड क्या है, कैन ग्रो इन होम गार्डन, तो ज्यादा फील्ड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड क्या था, देयर आर मैनी कॉन्ट्रास्टिंग
कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो दैट मीन्स ही कुड इजिली गेट द रिजल्ट्स के भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तभी पता चले भी कुछ चेंज, कुछ इनहेरिटेंस हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ वेरिएशन आ रही है नहीं आ रही। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल था, होम गार्डन में ग्रो कर सकता था। उसके बाद में पाइजन प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स ऑफ सीड्स। अगर लार्ज नंबर हमारे पास कोई सेट होगा, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमारा सेट है या जो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आ रहा है वो लार्ज नंबर में है, तो देन वी कैन से बेटर रिजल्ट। अगर हमारा सैंपल बड़ा है, सैंपल साइज ज़्यादा है, तो उसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे हम किसी को कोई हमें सर्वे करना है, एक हम सर्वे करें, दैट मीन्स कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन वी कैन से चिल्ड्रन। एक हम वो एक्सपेरिमेंट करें 50 बच्चों पर, एक करें 10,000 बच्चों पर, तो इन 10,000 वी कैन से चिल्ड्रन वी कुड गेट बेटर रिजल्ट। तो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स है, उससे भी हुआ। उसके बाद में उसमें क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन था एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन भी था। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन है, दैट इज हियर इज फ्लावर इज ए क्लोज फ्लावर है। आई हैव शोन यू इन द स्कूल गार्डन, इस बार लगवाए थे मैंने, दिखाया भी है मैंने तुम्हें। ओके, क्लोज फ्लावर्स हैं, एंड जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट ओकेजनली। तो मेनली क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या क्या हुए, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, होम गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन था। तो वाई, दैट्स वाई ही चोज द पाइजम सेटिवम। ओके, वो मैथमेटिशियन था, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट्स बनाए थे। इस क्लियर और नॉट? तो 7 साल काम किया, 7 हैप्लॉइड नंबर था, 7 ही कैरेक्टर चूज किए। नाउ कैरेक्टर्स क्या क्या थे और कॉन्ट्रास्टिंग क्या थे? I am writing 2 words here. One is dominant, other is recessive. Dominant, that means which express itself in any condition, और recessive जो अपने आप को दूसरे की प्रेजेंस में एक्सप्रेस ना कर सके, जैसे क्लास का मॉनिटर और कोई दूसरा मानो। ओके, तो ही टुक द 7 कैरेक्टर्स, वो कौन कौन से थे? कैरेक्टर्स ट्रेड्स डोमिनेंट रिसेसिव। तो कैरेक्टर्स थे प्लांट, हाइट, सीड, एक सीड के कैरेक्टर थे, देन फ्लावर एंड पॉड। हाइट का एक ही कैरेक्टर था, तो प्लांट हाइट ओनली, दिस इज द कैरेक्टर नंबर 1। सीड के 2 कैरेक्टर थे, दैट इज सीड, कलर एंड शेप। फ्लावर के 2 कैरेक्टर थे, कलर एंड पोजीशन। पॉड, जो पॉड होता है, जो फ्रूट है, उसके 2 कैरेक्टर थे, कलर एंड शेप। तो दैट मीन्स कैरेक्टर नंबर 1 इज हाइट ऑफ प्लांट, कैरेक्टर नंबर 2 color of seed, character number 3 shape of seed, color of flower, position of flower, color of pod and shape of pod. ओके, तो इसमें जो ट्रेड थे, जैसे अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसमें 2 ट्रेड हैं, कौन कौन से? या तो वो टॉल होगा या वो होगा ड्वार्फ।
ठीक है। तो इसमें हाइट के ट्रेट है टॉल, ड्वार्फ। कलर के हैं, सीड कलर है तो इसमें होगा येलो, ग्रीन। शेप में होगा राउंड, रिंकल। कलर में होगा, फ्लावर का कलर है वायलेट, वाइट। पोजीशन में एक्सेल, टर्मिनल। पॉट के कलर में येलो, ग्रीन। शेप में पॉट का शेप फुल कंस्ट्रक्टेड। अब देखो, here the dominant which express itself easily, और जो हमेशा इजीली दिख जाए, या that are we can say that we want dominant, कोई किसी को डोमिनेट कर रहा है। we will discuss about the dominant recessive later in detail। अभी एक बार इसको थोड़ा सा समझो। तो here the tall is dominant, dwarf is recessive। कैसे ध्यान रखोगे? दो वी कैन से पर्सन है, एक लंबा तगड़ा है, एक छोटा है, तो कौन सा डोमिनेट करेगा? मान लिया दोनों को आपस में लड़ाई करनी पड़े, या कोई बॉक्सिंग करनी पड़े, तो रेसलिंग करनी पड़े, तो कौन जीतेगा? इन ऑब्वियस वी कैन से। तो डोमिनेट कौन सा है? जिसकी ज्यादा हाइट है, तगड़ा है, वो है। तो हियर डोमिनेट कैरेक्टर इज टॉल। अगर हम कलर की बात करें सीड के, तो एक है येलो और एक ग्रीन। यहाँ पर जो येलो है दैट इज डोमिनेंट, और जो ग्रीन है वो रिसेसिव। शेप की बात करें तो राउंड डोमिनेंट है, और रिंकल क्या है? रिसेसिव है। राउंड मतलब जो दैट मीन्स मैच्योर सीड है, और हियर द सीड इज नॉट फुली मैच्योर्ड। कलर की बात करें फ्लावर की, तो हियर वायलेट है, जो कलर फ्लावर का कलर हमेशा में कलर की बात करें, जैसे कलर अगर कोई कलर्ड ही नहीं है तो फिर क्या होगा? तो वायलेट जैसे, और यहाँ पर वाइट हो गया, दैट इज रिसेसिव। देन पोजीशन। अब इसमें देखो, जो ये प्लांट है पी का, दैट इज लाइक वी कैन से टेंड्रिल्स, एक ग्राउंड पे ऐसे बेल की तरह होता है। तो एक फ्लावर कहाँ लगेगा? एक फ्लावर यहाँ तो लगे ऐसे टर्मिनल ऊपर, और एक लगे एक्सिल में कहीं साइड में नीचे लगे। तो जो नीचे लगता है वो दैट इज डोमिनेंट। तो हियर द एक्सिल इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज ए रिसेसिव। नाउ पॉड का कलर अब यहाँ उल्टा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर येलो और ग्रीन है, हम येलो और ग्रीन की तरह इसको क्या कर देते हैं? डोमिनेट कर देते हैं। सपोज करो आपको पी मार्केट से खरीदनी है, और दो तरह के पॉड है, एक उसमें लॉट में एक येलो कलर के और ग्रीन कलर के हैं। तो आप कौन से लोगे? येलो या ग्रीन? ग्रीन लोगे ऑब्वियसली, जो कच्चे हैं जो। तो यहाँ पर जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है। ओके, तो हियर द ग्रीन एंड येलो। इफ यू टॉक अबाउट पॉट की शेप, तो फुल, जो बिल्कुल फुल हो और अंदर से खाली हो, वो क्या चाहिए? तो जो फुल है दैट इज डोमिनेंट, एंड कंस्ट्रक्टेड है दैट इज रिसेसिव। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टर्स। यू कैन ऑल्सो सी इन बुक हियर शोन, like see the first character, that is shape, round. Okay, so here all characters are given, not visible clear in this video. Okay, so these are the different character. Which one is dominant, which one is recessive, what is recessive, what is dominant, we have to discuss later in detail. तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, फिर वो ट्रेड्स क्या हैं कि उनकी फॉर्म कितनी है, फिर वो डोमिनेंट ट्रेड या डोमिनेंट फॉर्म कौन सी है, रिसेसिव फॉर्म कौन सी है। तो कैरेक्टर कितने हो गए? 7 है। प्लांट की हाइट है, सीड का कलर, सीड की शेप, फ्लावर का कलर। अब इसको देखना, सीड के कलर और शेप है, ये इसके कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन ये यहाँ पर हमें ये कंसिडर करने हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। दैट मीन्स एक के सीड के कलर के कितने वेरिएंट है, सीड की शेप के कितने वेरिएंट है। ऐसे मत करना कि सीड है तो सीड का कलर और शेप, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। वी हैव टू कंसीडर दिस ओनली कि कलर के कितने वेरिएंट है, सीड के कितने हैं, कलर पोजीशन के कितने वेरिएंट है। ओके, तो कैरेक्टर्स यही है हमारे पास, प्लांट की हाइट, सीड का कलर, सीड की शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर एंड पॉड शेप। तो टॉल, ड्वार्फ, येलो, ग्रीन, राउंड, रिंकल, वायलेट, वाइट।
अब दो में दिक्कत आएगी, बाकी आप इजीली कर सकते हो। एक तो एक्सियल टर्मिनल वाली, इसका मैंने बता दिया कि टर्मिनल नहीं होगा, ये पेड़ जैसा नहीं होता, बेल जैसा होता है, तो ये डोमिनेंट रहेगा। और येलो और ग्रीन है, पोड है, ऑब्वियसली बात है, वी वांट ग्रीन पोड, तो जो ग्रीन है दैट इज डोमिनेंट है, येलो वाला रिसेसिव है। और ये फुल कंस्ट्रक्टर में वी कैन इजीली आइडेंटिफाई विच वन इज डोमिनेंट और विच वन इज रिसेसिव। ओके, so this is all about the characters of P taken by Mendel. Okay, after that we will discuss in next class. Thank you.